Today I am going to start our next chapter on the face of it, written by Suzanne Hill. So, before the start of chapter, we will see main characters and themes. So, let's see main characters. Mr. Lamb, he was old persons, and second one, Derry, he was a small boy. And what is our theme? Bonding between an old man and a small boy. It means bonding between Mr. Lamb and a small boy, Derry. So let's start the chapter. Mr. Lamb garden, there is a occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. When Mr. Lambs have a very big garden, there have lots of trees, and especially there have so many birds and beasts, especially of birds, they will be start a song. वहाँ पे क्या था, जो मिस्टर लैम्स के गार्डन से हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन साउंड सुनाई देता ही रहता है. वो क्या था, बर्ड का सिंगिंग का सॉन्ग. आफ्टर दैट ट्री making on the voice because they will be moving if wind will come to tree side, क्योंकि जो सनसनाहट जिसको हम बोलते हैं, जैसे ट्री का जो ब्रांचेस होता है, लिव्स होता है, वो मूव्स करते हैं, तो उनकी जो वॉइस होती है वो भी सुनाई दे रही है. There is footsteps are heard as he walks slowly. When in these times Derry entered that gardens, but he never want Mr. Lamb known about him. लेकिन वो कभी ये नहीं चाहता था कि मिस्टर लैम्ब क्या करे, उनके बारे में जाने, कि वो उनके गार्डन में इंटर कर चुका है. That's all. He want walk very slowly, but already he's walk slowly. But Mr. Lamb he heard his footsteps. लेकिन वो कितना भी स्लो चलता है, फिर भी क्या होता है, वो उसके फुटस्टेप्स को सुन लेता है. He walked slowly and attentively through the long grass. After that he was very walk slowly, but he was the guest. There have a persons, and especially that the grass was very long, but already Mr. Lamb known about him. अब क्या होता है, वो ग्रास भी क्या था, बहुत लॉन्ग थे, वो इतना धीरे चलता है, फिर भी उसके बारे में जो टेंटिवली होता है, गेस होता है, वो उसको कर ही लेते हैं कि वहाँ पे कौन है, कोई ना कोई वहाँ पे वॉक कर रहा है. He pauses, then walks on again. Suddenly, nobody will be known. That's because he was thinking. Suddenly was the stop. Suddenly was the pause. And after that, when he was continue start walking, फिर क्या होता है, पॉज कर देता है, रुक जाता है, फिर वो क्या करने लगता है, अगेन स्टार्ट करता है चलने का. He comes around a screen of buses, so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand, and there is starlight. After that, there have sound of come to the buses, as buses sound is especially used for bee. वहाँ से एक बसेस की वॉइस सुनाती है, जिसको हम भी यहाँ बोलते हैं, तो वो वॉइस कहाँ पे आ रही थी, बजिंग नॉइस, तो वो आ रही थी बीस की. सो दैट मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम, इसीलिए मिस्टर लैम्ब क्या करते हैं, उसको कहते हैं, इज ही इज क्लोज एट हैंड, कि उस हैंड के क्लोज कौन है, एंड डेरी इज स्टाइल, और डेरी उसको देखने लगता है. मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स, and what he was told that mind the apples, because needs of his concentrations when he was the walking, but he was not seen to the ground side. That's why she told him mind the apples. Apples पे ध्यान दो. Then what? He was surprised because he didn't know about the next second persons. Already he was thinking about he was lonely on that place. उनको लगता है कि वो अकेला है. यार इसीलिए होता है कि वो जब चोरी से जाता है ना, तो वो बोलने लगता है यहाँ तो कोई है नहीं, इसीलिए वो चुपचाप चलता रहता है. तभी अचानक से वॉइस आती है कि माइंड एप्पल, एप्पल पे ध्यान दो. तो बोलते क्या, हुज दैट, कौन है, हुज देयर, वहाँ पे कौन है, कौन हो, कौन है वहाँ पे, कौन है, ये सब चीजें कहने लगता है. मिस्टर लैम्ब स्माइलिंग माइंड एप्पल्स. उसके बाद वो रिप्लाई करता है, व्हाट ही वाज नेम, मिस्टर लैम्ब,
कि उसका मिस्टर लैम नेम है, और फिर वो दोबारा बोलता है कि एप्पल्स पे ध्यान दो। क्रैब एप्पल्स दोस आर बिकॉज इस क्रैब एप्पल्स इज कॉल्ड टू वाइल्ड एप्पल्स, क्योंकि वहाँ पे जो वाइल्ड एप्पल थे वो वहाँ पे थे। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रीप cause of wind falls. It's a very fast wind have falls. That's cause all apples have fell down on the earth. And what he will be do? Because they have a long grass, so definitely he will be put the trees. वो उसको कुचल देगा, स्किप कर देगा, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग ग्रास है और उसी में विंड फॉल होने के कारण क्या है, एप्पल्स गिरे हुए हैं। डेरी I thought this was an empty place, but he didn't know about the place. तो प्लेस के बारे में जानता ही नहीं, क्या बोलने लगता है, यह तो एक एम्प्टी खाली प्लेस है। I didn't know there was anybody here. According to डेरी को लगता है कि यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। मुझे लगता है didn't know, मैं ये जानता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई है, लेकिन वहाँ पे कौन था, मिस्टर लैम थे। मिस्टर लैम दैट्स ऑलराइट, ठीक है कोई बात नहीं। होता है ना कि हम जब किसी को नहीं जानते रहते बट सडन किसी की वॉइस सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फियर्ड हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, जब सिचुएशंस हमारे अंडर कंट्रोल पे हो तो हम उस टाइम रिलैक्सेशन फील करने लगते हैं। वैसे ही मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है। I am here, what are you afraid of, boy? That's all right, but only was the want to understand him. वो सिर्फ उसको समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है? कि कोई बात नहीं, मैं ही तो हूँ ना। हम बोलते हैं ना किसी को, जब छोटे बच्चे हमसे डर जाते, अरे डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। वैसे ही डेरी को कौन कहता है, मिस्टर लैम। I am here, मैं यहाँ हूँ, तो what are you afraid of, क्या के लिए डर रहे हो? किससे बोलता है? डेरी से। That's all right, सब ठीक है। डेरी, I thought it was an empty house, but before on that time he didn't know about that house and that gardens. Especially according to Derry, nobody was lived there. उसको लगता था कि वो हमेशा से खाली है, इसीलिए क्या कहता है कि मैं सोचता था कि ये प्लेस खाली था और यहाँ पे कोई रहता ही नहीं, ये एक एम्प्टी हाउस है, खाली घर है। मिस्टर लैम, so it is since I am out here in the garden, so it is, तो क्या ये है, since I am out here in the garden, तो मुझे क्या गार्डन से बाहर होना था। It is empty, ये अभी भी खाली है, because he was a single man until I go back inside. जब तक वो क्या होता है, अंदर जाता है, तब तक वो खाली ही रहता है। अब स्वाभाविक कॉमन सी बात है कि जब हम क्या करेंगे, एक सिंगल पर्सन उस पूरे गार्डन में या फिर हाउस में रहेगा, तो जब वो गार्डन पे रहेगा तब हाउस एम्प्टी रहेगा, और जब वो गार्डन पे होगा तो हाउस एम्प्टी, हाउस में रहेगा तो गार्डन एम्प्टी। तो वैसे ही बोलने लगता है कि जब तक वो कहानी जैसा until I go to my home, गार्डन ऑल्सो एम्प्टी। जब वो घर जाता है तो गार्डन हमेशा की तरह खाली ही रहता है। In the meantime, I am out here and likely to stop, especially Wednesday in afternoon times. When he was living in his house, that times garden was completely empty. And whose person is known about this? Derry. According to Derry, he was feeling definitely that house and garden was also empty. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. Now, Mr. Lamb told to Derry, especially that day, that was a very beautiful day. It is the reason he want to not spend a whole day inside of his house. That's because he was the come out of the garden side. वो बताने लगता है, क्या बताता है कि वो दिन उनके लिए बहुत स्पेशल था, बहुत ब्यूटीफुल था। वो अपने पूरे दिन को घर के अंदर रहकर स्पेंड नहीं करना चाहता था, वो उस डे का एंजॉय करना चाहता था। एंजॉय तभी कर पाएगा जब वो बाहर आएगा, इसीलिए अभी वो कहाँ पे आया है, गार्डन में। Derry, I have got to go, but when Derry he was known here have a person, so he was very panic. That's cause he want to left that place. जैसे डेरी को पता चलता है कि वहाँ पे कोई है,
तो वो करना क्या चाहता है, वो उस प्लेस को छोड़ना चाहता है, क्योंकि अब वो इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पे तो कोई पर्सन था नहीं। अकॉर्डिंग टू डेरी, ये डेरी का पर्सनल थॉट थी। मिस्टर लैम, नॉट माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स onto the gardens, the gate always open, only you climb to the garden wall. When Mr. Lamb told it to a small boy, according to his thought, he never want any person will become, and he never stops in his garden, because always his garden's gate was will be open. वो बताने लगता है कि उनके गार्डन का जो गेट है वो हमेशा से खुला ही रहेगा और खुला ही रहता है। कोई भी आता है, कोई भी जाता है, ही इज नेवर माइंड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ही वॉज द सिंगल मैन व्हेन ही वॉज नॉट कम टू द गेट साइड, ऑलरेडी ही हैव क्लाइंब्ड द वॉल एंड आफ्टर दैट ही वॉज जंप ऑन दैट गार्डन साइड, क्योंकि वही एक पर्सन था जो इसमें नहीं आया था, उस गेट से ना आकर वो एक वॉल से क्लाइंब करके आया हुआ था। डैडी एंग्री, यू वर वॉचिंग मी, क्या तुम मुझको देख रहे थे? बिकॉज आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। बट मिस्टर लैम्ब टोल्ड टू हिम नॉट स्पेशली, ही सेड दैट आई सॉ यू, मैंने तुमको देखा था। एंड हु सॉ दिस? Mr. Lamb. But the gates open. Now he want to tell him, and what was that? If he want, so definitely he came back anytime. वो किसी भी he can come anytime in any situation. वो किसी भी समय, कोई भी समय वो आ सकता है। तो वो बताने लगता है कि गेट क्या था, ओपन ही था। All welcomes, you are welcome, when he was telling about the other peoples and also death. Every person have welcome to his own house, because what was the reasons for a welcome? When he was sitting on that times and he liked the sitting, क्योंकि बोलने लगता है कि वो वहाँ पे बैठता है और उसको बैठना पसंद है। किसको? मिस्टर लैम्ब को। That I don't come to steal anything, but what he was come, he was not come for anything as stealing in his mind. वो किसी भी चीज़ को stealing करने नहीं आती। stealing is रॉबी, चोरी। वो कोई चीज़ों को बताने लगता है कि वो किसी चीज़ को चुराने नहीं आया है, वो तो सिर्फ एक थॉट्स माइंड में लेके कि वो एक एम्प्टी प्लेस है, तो उस प्लेस को वो क्या करने आया था? एज अट्रैक्शंस, बिकॉज he heard a voice of birds, buses, as the rustling of trees. That's cause in mind he want to attract on that place. वो एक charm था, attractions था, जिस कारण से वो वहाँ पे आया हुआ था। Mr. No, no, the young lads still scrums the apples. You are not so young. वो बोलने लगते नहीं नहीं, the young lads still, जो यहाँ को चोरी नहीं करते, स्क्रब्स द एप्पल, सिर्फ उसको क्या कर देते हैं? स्क्रब्स करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, कुचल देते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम अब इतने भी यंग नहीं हो जो क्या करो? स्टील करो, तुम तो एक स्मॉल बॉय हो। द यंग लीड्स स्टील, यंग ही चोरी करते हैं, क्योंकि तुम तो एक यंग भी नहीं हो, तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो। ये थॉट किसका था? डैरी का। डैरी के लिए किसका था? मिस्टर लैम्ब का। I just wanted to come into the garden, and he was tell very simply. What was the reply? He want to come that gardens, कि वो उस gardens में आना चाहता है। Mr. Lamb, so you did, here we are then. So you did, तुम थे, अब क्या कहते हैं? तो तुम थे? No, here we are then. तो अब हम यहाँ पे हैं। कौन दोनों? Mr. Lamb and Derry. You don't know who I am, but Derry told to Mr. Lamb, you don't know about me, who I am. वो कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। Mr. Lamb, a boy 13 or so
Mr. Lamb told about his age and voting was just approx 13 or so. बोलने लगता है कि अभी 13 हो और सो उससे या फिर ज़्यादा हो गए. Daddy 14. Pause. But I have got to know goodbye. But when he was tell his age, and what was his age? He was 14 years old. After telling these words, he want to go back his home, and he told him now goodbye. बोलने लगता है कि वो